Thank you, sir. Is it clear? Uh, Next 12 to 13 minutes, I'll just speak on alternative things and immunity and main topic. Uh, After this beautiful talk by my dear friend Dr. Shashank Joshi, which was full of knowledge and latest updates on present pandemic situation, I will mainly focus on immunity and prevention is present time, which will be helpful not just in this pandemic situation but of course in all future activities as well. Now coming to the main topic of today, so far prevention and immunity is concerned, most important thing is our physical and mental fitness, which can be achieved by yoga, pranayam, kapalbhati, भ्रामरी प्राणायाम, सूर्य नमस्कार एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आसनास. और जहाँ तक योगासन का सवाल है, along with yogasan we can do any physical exercise where we should sweat, pasina aave, which will increase our capacity of heart and lungs, which are, as everyone knows, these that lungs are the most affected organs in this disease, so we must take care of that. Now, though overall situation is under control, still we have to be very careful. And whenever you feel that there is some exposure, travel, or something history of travel or going out, you can do gargle, salt water, salt haldi kind of thing in warm water, steam inhalation, and if possible, Jalaneti is supposed to be one of the very good thing for such this thing, which is very effective and saved many medical practitioners, many medical professionals. We can increase intake of tulsi, ginger, lime, citrus fruit, which are full of vitamin C and which increases immunity, healthy garlic kind of things. We have to follow 3D principle: diet, deeds, and drugs. So far diet is concerned, try to take healthy, balanced diet on regular basis because food plays an important role in overall health and immunity. Proper rehydration, proper hydration is very necessary, so take adequate intake of water. Deeds, as we discussed earlier, you should do proper exercise, and drugs means medicine, it comes in the last. So after that, if required, we can take ड्रग्स और मेडिसिन्स. बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर बताए तो घर का वातावरण हमें प्रसन्न रखना ज़रूरी है. इसमें हम अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से भी इसे जोड़ सकते हैं. हंसते खेलते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बिकॉज इट इज़ सेड दैट एन एंजॉयग्राफी कैन अवॉइड एंजियोग्राफी. दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं. ऐसे में हम अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताए. ऐसे मौके बार बार नहीं आते. मौका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ वी ऑल आर फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी एंड वी आर इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एनी सच काइंड ऑफ थिंग. जैसे कि हम कहते हैं मंदी में संधि, सो वी शुड ऑलवेज टेक सच पैंडेमिक्स एज एन अपॉर्चुनिटी. पॉजिटिव न्यूज़ देखें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा संगीत सुने, एसएमएस का पालन करें. एसएमएस का यहाँ मेरा मतलब है सैनिटाइजेशन, मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग. सोशल डिस्टेंसिंग में स्पेशली मैं कहूँगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आजकल खास तौर पर जैसा कि अभी डिस्कस हुआ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ जैसी चीज़ों से दूर रहे, काम की चीज़ें उसमें से ले, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो सर्कुलेट हो रही है वो किसी साइंटिफिक बेस के बिना हो रही है. ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना ज़रूरी है. मैं आयुर्वेद का स्नातक होने के कारण एक बात ज़रूर बताऊंगा. एक आयुर्वेद का बहुत अच्छा सूत्र है हेल्दी रहने के लिए: समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्ते विद्यते. अर्थात हमारे शरीर के दोष, हमारे अग्नि मतलब डाइजेशन, हमारे शरीर के सप्त धातु, हमारी मलक्रिया, ये सब चीज़ें सही प्रमाण में हो,
हमारा आत्मा, मन, इंद्रिय सभी कंट्रोल में हो, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। सिर्फ शारीरिक रूप से हेल्दी रहने में मतलब नहीं है, हम शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक तौर पर और बाकी सभी चीज़ों में हेल्दी रहे, तभी हम अपने आप को हेल्दी कहलाएंगे। और जहाँ तक हैबिट्स का सवाल है, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको इन एनी फॉर्म decreases immunity, so keep away from all these things। और स्पेशली कोमॉर्बिडिटी जिसको है, डॉक्टर शशांक ने भी अपने इसमें बताया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोई लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी जिसे है, ऐसी चीज़ों में हमें और ज़्यादा ध्यान रखना है। एल्डरली पर्सन, सीनियर सिटीजन में भी और ज़्यादा केयरफुल हमें रहना ज़रूरी है। हमें इस बीमारी के डर को ख़त्म करना है, फिर भी सभी नियमों का पालन करना है, सभी प्रकार के सेफ्टी मेजर्स हमें अपनाने हैं। ओवरऑल death rate is very low, so we did not worry much. We should reduce stress level. Again, it can be done with yoga and pranayam. Keep weight under control, as fatty people are more prone to have such infection. आयुर्वेद के 3 पिलर्स बताए गए हैं अच्छे हेल्थ के लिए, आहार, विहार और निद्रा, जिसमें आहार और विहार के विषय में हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन जो 3rd पिलर है, वी जस्ट फॉरगेट दैट, निद्रा। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7 से 8 घंटा नींद होना ज़रूरी है, जिसे हम कई बार निगलेक्ट कर देते हैं, और कहीं सुनी बातों पर हमें विश्वास करना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा रोग क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे हमें दूर रहना चाहिए। देर आर 130 पैथीज इन द वर्ल्ड, जैसे एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी से इसी 130 पैथीज है, लेकिन आजकल 131वीं पैथी बहुत ज़्यादा चल रही है, गूगलोपैथी। लोग गूगल को सुनकर, गूगल को पढ़कर कई चीज़ें अपने आप में प्रेडिक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी डेंजरस हो जाता है अपने हेल्थ के लिए। एक कहावत है, जिंदगी भर मैं अपने आप से धोखा करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा, हमें हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर अंतर बाह्य रूप से जो धूल रूपी बीमारियां हैं, जो हम शायद देख नहीं पाते, शायद हम देखना नहीं चाहते, उन्हें देखने के लिए अपना जो रूटीन पीरियडिकली हमें हॉस्पिटल जाके कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, कुछ टेस्ट करने हैं, तभी हम इस धूल रूपी बीमारी को देख सकेंगे, तभी हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकेंगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव हर एक के आते हैं। आप सभी ने ईसीजी देखा है, ईसीजी में जब तक स्पाइक्स चल रहे हैं, अप डाउन चल रहे हैं, तब तक जिंदगी बनी रहती है। आप सभी को पता है, जब ईसीजी में स्ट्रेट लाइन आ जाती है, उसका मतलब क्या होता है। इसलिए जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को एक अच्छे पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर उसे हम समझ पाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। हमारी ज़िंदगी में आने वाले हर तूफान हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आते, कुछ तूफान हमारा आगे का रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। शायद ये तूफान हमें बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है, जो हमें आगे जीवन भर हमारे लिए काम आ सकता है। आजकल मोबाइल, लैपटॉप, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ हो रहा है। हम ये प्रोग्राम भी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर ही देख रहे हैं, लेकिन इसमें भी हमें कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। सेफ डिस्टेंस होना डिवाइस में, आंखों में, इससे कई बार हमारी आंखों पर, हमारे ब्रेन पर, हमारे साइकोलॉजी पर इफेक्ट हो रहा है। इसे भी हमें किसी न किसी तरह से समझ लेना पड़ेगा। हम रोज़ 50 से 100 कॉल, डॉक्टर शशांक है, मैं, हमारे जैसे डॉक्टर्स, कई सारे डॉक्टर्स रोज़ 50 से 100 कॉल अटेंड कर रहे हैं। ऐसे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग पर जोर देना है, ट्रीटमेंट के बजाय। ट्रीटमेंट तो खैर आज लास्ट पार्ट आ जाता है, उससे पहले हमें काउंसलिंग पर ज़्यादा जोर देना है। अब ट्रेन, बस, फ्लाइट्स, व्यापार, रिश्तेदारी, सुख दुख सभी ग्रेजुअली शुरू हो रहा है। हालांकि पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक इस पैंडेमिक ने ऑलरेडी कहर बरपा रखा है, और ऐसे में हमें, जिसमें रोज हम, कई लोग इससे ग्रस्त है, त्रस्त है, फिर भी दुख की बात यह है कि लोग अभी भी, कुछ लोग अभी भी बेखौफ है। अब 3rd वेव को बचाने के लिए मीडिया, सरकार, मेडिकल फ्रेटर्निटी सभी बराबर मार्गदर्शक सूचनाएं दे रहे हैं, फिर भी हम ज्ञान को जान से नहीं जोड़ पा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें सोचना है, हमें सोच समझ कर जीना है, और समय में स्वयं में परिवर्तन लाना है। अवॉइड गैदरिंग्स, गेट टुगेदर्स, सेलिब्रेशन। हम में से अधिकतर लोग व्यापार करने वाले लोग हैं। यद्यपि हम और हमारे एम्प्लॉयज स्वस्थ रहेंगे, तभी हम भविष्य में व्यापार कर पाएंगे। ऐसे में अधिकाधिक समय परिवार को साथ दीजिए, दिल खोल कर जिए, सबसे संवाद करें, विवाद ना करें।
एक बहुत ही पते की बात जाते जाते मैं आपको बता के जाऊंगा। एक हॉस्पिटल के, बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर लिखी हुई बात मैंने बहुत अच्छी लगती है मुझे। अगर दिल खोल दिया होता यार दोस्तों के साथ, अगर दिल खोल दिया होता यार दोस्तों के साथ, तो आज खोलना न पड़ता औजारों के साथ। मजाक अपनी जगह है, फॉरगेट जोक्स, बट इसमें सबसे पते की बात यह है कि हम दिल खोल कर जीते हैं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, सबके साथ खुलकर बातें करते हैं। और एक कायदे से प्रूव हुआ है, इट हैज़ बीन प्रूव्ड नंबर ऑफ टाइम्स ऑलरेडी, इफ यू आर हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री, you remain healthy, and so is your immunity, which is very helpful for you to prevent yourself from such pandemic. That is why we say laughter is the best medicine. We are running a medical all India international medical helpline, upchar.in. Dr. Shashank is a part of that. Many doctors are connected with me, so if there is any question, you can connect Dr. Shashank also through me in future also. We manage doctor's appointment, hospital beds, shifting, ambulance, air ambulance, hospital beds, everything and related services pan India as a service to community. So to end my talk, I would like to thank organizers of this webinar, and that we got opportunity to speak in front of such educated and high profile people. So thank you, RL साहब, चांडक जी, राठी जी, एंड धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।